Okay, I will take from very basic to all things. Perfectly okay. Yes. Okay, let me 1 second. So I will just share my screen. आगे कोई आवाज नहीं करना, मैं शेयर करने जा रहा हूँ, समझा दो इसको. चुप. So you can see my screen. जस्ट अ मिनट सर. नहीं, अभी नहीं देख पा रहा स्क्रीन. कुछ ओपन हो रहा है? नहीं. शेयर अभी हुआ नहीं क्या? नहीं नहीं, अभी भी कुछ नहीं आ रहा सर. 1 सेकेंड. ये तो यहाँ शेयरिंग दिखा रहा है. ओके. इसको दोबारा शेयर करता हूँ. डेस्कटॉप. अच्छा, अभी कुछ हो रहा है सर? वीडियो आपको कंट्रोल देना पड़ेगा. प्रेजेंटिंग गिव कंट्रोल. यस, आ गया. अभी दिख रहा है सर? जी सर, अभी देख रहा. आ गया. ओके ओके. Okay. So, okay, now you can see my desktop, right? यस सर. Okay. So, sir, as you know, the software name is Case Ultra, right? हम्म. So, this is a product from a company called Multicase, and we are having the longest and oldest research association with US FDA. That is more than 15 plus years, and still it is going on. ओके. So, basically, two methods are required for that assessment. One is called statistical, and another is rule based. We also call it knowledge based नॉलेज. methodology. So in our Case Ultra software, you are getting both of the packages in same software, not like other companies we supplied it separately. So it is bundled in single same package, and you are getting something add-on to this that support your expert review. Basically, we call it consolidator. So when you run the job in two methods, so finally you receive some output. It may be a positive or negative or out of domain or negative positive. So in case of a conflict in a decision, this consolidator will help you to give you the final judgment that this call is negative or positive with all the relevant evidence which you can include in your final write-up, right? ओके. Okay. So these are the basic model which are available with our software. So basically two statistical models are there. One is called GT1 underscore BMUT, which is a main statistical model, and it contains training data size of 11,400 plus compounds, and all these compounds are tested negative on all important 5 bacterial stains which are required for all regulatory agencies before you file detail about your negative details to the compound, right? And this model, as I told you, built in collaboration with US FDA, and it's properly validated using all OECD principles. And ओके. very proudly, we can say that Multicase has developed a biggest data set in market. We are having a broader coverage in terms of the chemical coverage, right? So this is one statistical model. In along with that, we are also providing you one more additional statistical model. I believe if you open the software, you can see 3 model in that. So the third model is called FarmBut, and it is actually a proprietary data set which we have received from lots of pharma companies and also from few of the regulatory agencies and other universities also. So basically, the data of this particular model is proprietary. So in few of the cases, you cannot see the structure, but the knowledge has been extracted, and we have prepared our training set. So you can use that to get the prediction. But you are not always required to use this third model.
You are supposed to use third model only when you face trouble with above two model, that you are getting something like out Yes. of domain, or it is Mm. coming positive. You feel no, I think it is negative. Then you can take the opinion of third model. So it will give you some significant outcome in that case. But in normal run, you are not required to run all three models. You just need to run GT1 underscore BMUT and GT export. That last model which we are talking about is a rule based model, and it contains alerts. It will give you highlight some alerts. Approximately we are having 200 alerts, and it will also highlight some of the mitigating features which actually deactivate the toxicity of the molecule, right? And again, it is highly means validated against all the relevant aims tests required, like bacterial stain and all. So Mm. it is widely accepted by all of the regulatory agencies. Even though the FDA, they have the software installed at their end. So if you prepare any report and submit to them, if they want to reproduce the result, they can do it because they have software at their end. So it is well known software by regulatory agencies also, and we are working from long back in that particular division. So if you go through the mutagenicity database, we also contain some rodent carcinogenicity data, that is approximately 2000 compounds are there, which is again built in collaboration with US FDA. It contains Salmonella and E. coli, and the data size is around 16,392 compounds, which is updated regularly on yearly basis. We don't Mm. update very quickly, like 2 3 months we do, because we what we feel that once we have supplied model to any agencies, they have produced some result and some outcome, so we don't want to disturb them. So we normally update our database on yearly basis. If any something which is very mandatory release, then we can update before 1 year also. So you will get detailed bibliography informations, all bacterial stains, assay conditions, everything which is required to write your report, right? So this is the basic workflow of the software where you need to focus actually. First thing which is the preparing the input file of the software, means when you're supplying the impurities or API or leachable, extractable, whatever that query Mhm. molecule, you have to prepare the input file, and there is a standard format for preparing that, and I will show you that how you can do it. Once you're done with the preparation, you need to select the model. That is the two models which I told you by default, that is one is statistical and then rule based. So once you've done the selected the model, run the prediction, then for final predictions you need to perform the consolidated analysis. So it will give you the evidence to write a expert review. So first three job is done by the software. Now you can see in last you have to review the evidence and then write a report on that, and that is something manually you have to do, right? Yes. So this we have some sample report for you. If you need, I can share the sample report, and you can take it as a reference, and you Mm. can reproduce your own report in the format we shared with you. Right? Okay. Okay. So let's move to the software now. I will open the software directly now. Yeah. So you can see by default three models uploaded here. Hmm? So this is Correct. green region. This is area for model allocations. Whatever the model you are using, that will be displayed here. And Mm. this is the area, means to select select the type of chemical file you are working. You may be working on some file, or if you are working on some one chemical. But it is always suggested you always select this third option, test chemical from data curator, right? So once you select this, you can see data creator option in that the third window, it highlighted Mm. this one, and in that window you can see load chemicals options are there, right? Yes. So for loading you have a different options. You can load SD file, mol file, copy from clipboard, and draw structure. You are familiar with the SD file? What is SD file? No, no. Okay, SD Thanks, sir. file is actually a one way of saving the chemical. You can see that I have. This is not a multi-case. This is different software. Just to show you what is this SD file, I have opened this.
suppose I have this particular structure, I want to save this structure. So we have a different file format to save. Here you can see there is one file format called SDF. See, .sdf, right? Okay. So if I want to save this molecule, what I can do, this is anilyl, and if I save it by that file format, SDF, so it will now save into aniline.sdf, right? If I save on desktop, it will save like that only. And yeah, it is saved. I will show you. See, this is aniline, and file format of this compound is properties .sdf, right? Correct. So this is one way of saving file. There is another way also. You can save in mol file. I believe you, if you are familiar with the ChemDraw software, in ChemDraw they have this format of saving like .mol file, right? Or so this is different way of saving the file only. Okay, ChemDraw will work on this one. Yeah, you can copy molecule from ChemDraw and you can import in the software. But actually, we already given you have the drawing interface, so it is not required always to take data from ChemDraw. You can do here also. I will show you one by one. Mm-hmm. So this is SD file. Then this is a mol file which I already have shown to you, and this is a text file and paste from clipboard. Before that, I will show you the drawing part also. Suppose you want That I know. ये मुझे मालूम है सर. ये मालूम सर. मैं ये ठीक ये है. मालूम. इसमें कैसे वो आपका वो स्माइल जनरेट करते हैं वो मालूम है आपको? स्माइलीज का नहीं मुझे मालूम. चलिए मैं एक मॉलिक्यूल ड्रॉ कर देता हूँ. ये मैंने बेंजीन ड्रॉ कर दिया. अब इसका स्माइली कॉपी करना चाहते हैं, जस्ट क्लिक ऑन कॉपी. ओके. इसका स्माइली जनरेट हो गया. इसको आप क्लोज करेंगे और कोई अगर मान लीजिए कोई सीट भी अगर खोलेंगे तो ये देखिए इसका स्माइली यहाँ पे आ गया, राइट? ओके. ये हर एक स्ट्रक्चर का हो जाएगा ड्रॉ? हाँ, जितना स्ट्रक्चर आप चाहते हैं, आप कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए और उसका स्माइली आप वहाँ से लेना चाहते हैं. आप जैसा भी स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करेंगे, जो भी स्ट्रक्चर आप यहाँ लगाएंगे उसका स्माइली जनरेट हो जाएगा, राइट? मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ कर रहा हूँ, फिर मैंने कॉपी किया नोटपैड, ये देखिए इसका स्माइली आ गया, राइट? ओके. बस वहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, वहाँ पे कॉपी हो गया, यहाँ कंट्रोल V कर दिया मैंने. ठीक है. चलिए, ये इससे आप फेमिलियर हैं. तो सीधा आते हैं बाकी डेटा टाइप पे. दूसरी डेटा हम कौन से पे, ये एक फाइल है जिसकी मैं बात कर रहा था आपको मैं सिखाने के लिए कि इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक? हाँ. तो मान लीजिए हमको कोई ऐसी फाइल बनानी है, तो उसको कैसे बनाएंगे? मैं एक नया वो खोलता हूँ, न्यू एक्सेल शीट. फाइन. मान लीजिए मैं इस कहीं से डेटा उठाता हूँ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ से ले रहा हूँ. तो मैंने पहले ले लिया कैश नंबर. ओके. कैश नंबर रिक्वायर्ड रहेगा? नहीं, कैश नंबर रिक्वायर्ड नहीं है. कैश नंबर की कोई मैंडेटरी जरूरत नहीं है. मैं आपको बता दे रहा हूँ खाली. मान लीजिए आप खाली जानना चाहते हैं कि आपने कैसे क्या बनाया, तो हमने यहाँ लिख दिया कैश नंबर. नेक्स्ट हम लिख देंगे स्माइल, और इसके बाद हम लिख देंगे इसका नेम. ये अपने रेफरेंस के लिए खाली, पहले रो से कोई मतलब नहीं है. और हमने पहला कैश नंबर यहाँ पे कंट्रोल V कॉपी पेस्ट कर दिया, करेक्ट? फिर हम गए, हमको अब चाहिए इसका स्माइली हमने कॉपी किया. आप ये कहीं से भी कॉपी कर सकते हैं, मैनुअली टाइप कर सकते हैं, जहाँ भी लिटरेचर में से आप डेटा उठाना चाहते हैं वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं. मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, तो यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ. अभी यहाँ पे सर पेस्ट करने में थोड़ा सा ट्रिकी है. न्यू लाइन करेक्टर नहीं आना चाहिए. तो आपका जो कर्सर है अभी इस बॉक्स में है, कीबोर्ड में जाइए, नेक्स्ट का जो एरो है उस पर क्लिक करिए. नेक्स्ट में आ गया. ओके. देखिए नेक्स्ट में आ गया, और कंट्रोल V दबा दीजिए, ये आ गया आपका स्माइली आ गया. ये थोड़ा ट्रिकी है. इसके बाद में नाम दे रहा हूँ मैं इसको भी मैंने कॉपी कर लिया. मैंने वही फाइल खोली. अब यहाँ से नेक्स्ट विंडो कैसे जाएंगे? कीबोर्ड का जो नेक्स्ट है उस पर क्लिक किया हमने. क्लियर है? देखिए कीबोर्ड के नेक्स्ट को क्लिक किया मैंने. कीबोर्ड में जो नेक्स्ट का एरो बटन होता है, लेफ्ट राइट अप डाउन, मैंने उसको क्लिक किया और कंट्रोल V, देखिए हो गया, डन. और मैं एक दो लाइन और बना देता हूँ तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा. एक और मैं एंट्री कर देता हूँ, ये हो गया कंट्रोल C. ये तो ट्रिकी बात है, लोग यहीं पे गलती करते हैं, इसलिए फिर वो एरर आने लगती है.
मैंने ओके फिर सर। इसका स्माइल कॉपी किया। कभी भी किसी पर्टिकुलर सेल में न्यू रो नहीं आना चाहिए, न्यू लाइन नहीं आनी चाहिए, वो आ जाती है। अभी मैं यहाँ नेक्स्ट किया, कंट्रोल वी, फिर इसका नाम हमने लिया कंट्रोल सी, और मैंने नेक्स्ट किया कंट्रोल वी। अब ये देखिए, इसको मैं अगर कॉपी करके ओपन करना चाहूँ, हाँ, कॉपी करते हुए पहले रो को कॉपी नहीं करना, इसको इग्नोर करिए, ये खाली आपके समझने के लिए, राइट। हमने खाली इसको कॉपी किया। क्या कॉपी करना है? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और कहाँ तक? थर्ड रो तक। हमारे दो रो में खाली है, सेकंड और थर्ड रो में डेटा है हमारा, राइट। हमने कॉपी किया, कंट्रोल सी, सॉफ्टवेयर खोला और पेस्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड। देखिए बिना किसी एरर के डेटा यहाँ पे आ गया, आ गया। ओके। अभी एक तरीका और सिखाता हूँ मैं आपको करने का, एम्प्टी। आप चाहे तो ऐसी फाइल भी बना सकते हैं। ये जो फाइल है, इसको कहते हैं टैब सेपरेटेड फाइल, ठीक है। मान लीजिए नई फाइल बनानी है, न्यू, तो मान लीजिए अब की तो इसमें हमने ये कॉपी किया, कंट्रोल सी, हमने इसका वो उठाया एक कैश नंबर, कंट्रोल वी किया, फिर मैं यहाँ गया, मैंने स्माइल कॉपी किया, कंट्रोल सी, और अब यहाँ पे कर्सर रखिए, और वो आपके कीबोर्ड में जो TAB टैब बटन होता है, उसको एक बार क्लिक करिए, एक बार प्रेस करिए, हो गया। और कंट्रोल वी, ये डेटा आ गया। इसको कहते हैं टैब सेपरेटेड। फिर मैं यहाँ गया, मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कर्सर रखा है इसके पास, और एक बार टैब बटन दबा दिया, और कंट्रोल वी। अब इसके बाद इंटर न्यू, सॉरी, हाँ, एक बार इंटर मारा, नेक्स्ट लाइन पे आ गया मैं। फिर मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी, देन कंट्रोल वी, सिमिलरली अगेन कंट्रोल सी, और यहाँ पे रख के टैब बटन दबा के कंट्रोल वी, देन अगेन इसका नाम ले लिया हमने, कंट्रोल सी, और यहाँ पे रख के एक बार टैब और कंट्रोल वी। अब इसको आप पूरा कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, सॉफ्टवेयर को ओपन करिए, कोई डेटा नहीं है, पेस्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड, देखिए वहाँ से भी आ गया, करेक्ट, ओके। कोई दिक्कत नहीं हुई। तो आप चाहें तो ऐसी फाइल बना लें, आप चाहें तो ऐसी फाइल बना लें, ओके। दोनों ही फाइल। इसमें अच्छा क्या होता है, आपके पास में 1000 केमिकल हैं, 10 केमिकल हैं, सब एक लाइन में आपने एंट्री कर दी यहाँ पे, करेक्ट। तो वो आपका काम थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। एक बार आपने खाली फाइल प्रिपेयर करनी है, उसके बाद आप जितने बार उतने बार जॉब रन करिए। हमको इसको एम्प्टी करना है, इसको हम हटा दे रहे हैं एम्प्टी, और दोबारा से जाकर के उस फाइल को मैं अब रन करूँगा। मान लीजिए मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। हमने क्या किया, हमने फर्स्ट रो से कॉपी किया, थर्ड कॉलम तक और सेवन्थ रो तक, इतना ही डेटा हमारा है। फोर्थ रो में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेटा तो हमारा इतने में ही है। वो लगता है कि ये डी में भी लिखा हुआ है, पर डी में है नहीं, वो है सी में ही। अब हमने इसको कंट्रोल सी किया और पेस्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड, देखिए सारे केमिकल लोड हो गए। करेक्ट। एक तरीका मैं आपको और दिखाता हूँ, तो ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। एम्प्टी, ये मान लीजिए आपके पास में खाली कैश नंबर है, और आप चाहते हैं कि अब कैश नंबर से मुझे कैसे मिल जाए, खाली कैश नंबर है। ओके। मैंने खाली कैश, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास खाली कैश नंबर है, तो मैंने खाली कैश नंबर कॉपी किया है, और हमने यहाँ पे पेस्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड किया, सारे केमिकल आ गए, पर किसी का स्ट्रक्चर नहीं मिला हमें, राइट। ओके। इसमें हमको स्ट्रक्चर मिल सकता है, दो तरीका है। एक है गेट स्ट्रक्चर फ्रॉम वेब, हमने ये क्लिक किया, तब ये क्या करेगा, वेब पे देखा, हमको पहले मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर मिल गया। अभी हम 1 बाई 1 सबका कर सकते हैं। अगर वन गो में करना चाहते हैं तो 1 स्टेप क्यूर पे जाकर के डाउनलोड फ्रॉम पबकेम चेक कर दीजिए, और ऑलवेज न्यूट्रलाइज द चार्जेस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस। ये आउट ऑफ डोमेन केसेस को काफ़ी हद तक हैंडल करते हैं, और चार्जेस बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, अगर इम्पोर्टेंट है तो सॉफ्टवेयर लेके चलेगा, अदरवाइज चार्ज को हमेशा आप न्यूट्रलाइज कर दीजिए, राइट। देन क्लिक ऑन प्रोसीड। अभी आप देखेंगे ऑटोमेटिक सारा कुछ, सारे स्ट्रक्चर आ जाएंगे। आपने खाली कैश नंबर से सब कुछ किया। नाउ दे ग्रेट, देयर आर नो मोर एरर्स और डुप्लीकेट, एंड यू हैव ऑल द स्ट्रक्चर।
प्रॉब्लम क्या है, आपके पास में नाम नहीं है, राइट। नाम को एंट्री करना है, तो आपको अगर मालूम है कि ये कैश नंबर का जो केमिकल है इसका नाम क्या है, तो आप एडिट में जाइए और यहाँ पे मोल 1 के जगह पे उसका जो भी नाम है वो आप, जैसे इसका नाम अगर बेंजोफिनॉल है तो आप लिख सकते हैं। आप जो लिखेंगे यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, नाम आ गया उसका, ठीक है। तो ऐसे ही आप सब कुछ चेंज यहाँ से कर सकते हैं। इवन अगर आपको स्ट्रक्चर मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई पे क्लिक करिए, यहाँ से आप मॉडिफाई कर लीजिए, राइट। ठीक है सर। ये तो आपको मालूम ही है। तो ये एक और तरीका है स्ट्रक्चर रिट्राइव करने का, ठीक है सर। ओके सर। इसको मैं ब्लैंक करता हूँ। चलिए अब अपने उस पर आते हैं, डेटा पे। ये हमने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, लोड केमिकल फ्रॉम क्लिप। ये हमारे पास में 7 केमिकल्स हैं, जिसके अंदर मेरा 7 नंबर पे जो है एपीआई है, ठीक है और सर। ऊपर के जो तो हैं ये इम्प्योरिटीज़ हैं, एसिटिलजिलामाइड की इम्प्योरिटी। तो आपको ये दोनों मॉडल एक साथ सेलेक्ट करने हैं, फर्स्ट मॉडल एंड सेकंड मॉडल, एंड रन टेस्ट। बहुत ही सिंपल इसकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, कोई भी हाई फाई हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है। कोई भी विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट टीम से सपोर्टेड है वो वर्क करेगा। अब आप देखिए, प्रेडिक्शन हो गया, दोनों मेथड्स के आउटपुट आ गए, पॉजिटिव नेगेटिव एंड नॉन नेगेटिव। सॉफ्टवेयर सबसे पहले क्या करता है, इट फर्स्ट लुक इनटू द लिटरेचर बिफोर डूइंग एनी प्रिडिक्शन। फर्स्ट जॉब ऑफ द सॉफ्टवेयर is to look into the literature. Literature means if you can see the keyword known somewhere, it means that we have experimental data, AIMS data available for this particular report, and it is already known AIMS negative. नेगेटिव। So this is my API, and API mostly it is negative only, and it is detected by software. जो ऊपर आप देख रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, दीज आर द प्रेडिक्शन डन बाय द सॉफ्टवेयर, राइट। यस। बट नाउ नाउ व्हाट इज द फाइनल आउटपुट, जब आप रिव्यू लिखेंगे व्हाट यू शुड राइट फाइनली, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। And here in Case Ultra you are having a feature called consolidator which will help you to overcome these issues. Now what happened when you click on the consolidator, this is the third option, second option, this window will be prompted. Then specify inert substance or API, and this software considered whatever API you are supplying, it should be experimentally tested negative, right? तो हमारा API इस केस में कहाँ पे है, इट इज ऑन ID नंबर 7, तो आप यहाँ पे 7 लिख दीजिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल अभी हम कुछ नहीं बोलते हैं, वी डोंट टेल अबाउट API, लेट्स सी व्हाट हैपन, कैंसिल। मैं बिना API के रन कर रहा हूँ, आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग अबाउट API इज नॉट अवेलेबल। ओके। और इसको आप चेक भी नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वी आर नॉट गिविंग एनी इनपुट हियर। ओके, लेट्स सी। Then sir you will realize what is the power of this telling the API. You see there is no unique finding. You are getting for positive, you are getting positive, for negative you are getting negative, and these are fine. But when you tell about the API that my API is on ID number 7 and then okay, see. So what happened actually, those API and impurities, the impurities are produced during the course of synthesis, right? So most of the times it is a part of API. So they are shared with API, and we know that our API is known negative, AIMS tested negative, and if our impurity is also shared with API, so it comes into class 4 negative. So you can see all is now negative. Why it is negative? Previously it is positive, but now it become negative. Let's investigate in deeper. Click on this side.
You can see this is your query molecule, right? Now what final prediction we got? Negative. Call is based on analog analysis of alerts. All identified alert features were found to be irrelevant to the activity. Fine. So this the tips we are getting. A potential ICHM7 class 4 compound. Alerting structure. Same alert is in drug, substance or compound related to the drug substance which have been tested and are non-mutagenic. Review the comparison with the inner substance. Now what is happening? Software is telling that yeah, this seems to be a class 4 compound, but it is a expert review tip. So don't believe on this blindly by just seeing the report. You say now it is finally it become class 4 and submit to the agencies, because then they may come up with some query how you are telling it is negative. By just keyword you are telling negative, it is not justified, right? Now you have to justify your call why it is become negative. So we will go in deeper. So these are the two methods we have used, and the outcome, it is positive, but we are telling it is negative. Why we are getting positive? Because of alerts. 3 alerts from statistical, 1 alerts from rule based. Now let's go more deeper. Yeah, this is my query molecule. Yes. And if we see the nearest analog, these are the nearest analogs in comparison to my query molecule. And we found all these analogs are negative. We don't just look into the similarity, we also look on the environment of this analog. That if this group, what kind of group is presenting here and here, this is methyl, here also methyl. So the electronic environment of this group and this group is same, right? So you have to look on all parameter, then it will compare with the API that we told that we are looking in contrast to API. This is our API. Now what differences we have with API? The yellow region you can see, these are the difference, right? And what alerts we receive? We receive these 4 alerts, and we have to cancel these 4 alerts to justify our call that it is finally negative. So it will take one by one. It will take first this one, then third one, and finally fourth one. So if you take go to the query structure, it is taking first alert number 39, alert number 39, right? Same alert. What finding software gives? This alert is dismissed because it is shared with an API compound. That is okay. Good. Let me investigate more deeper how it is telling. If you go more deeper, it will this alert is present in supplied inner substance. So this is the environment, and here we are getting the alert. Now what it will do? It will give you the relevant analogs. So we got one analog, two analogs, and both analogs it is negative. Negative means we have experimental data for this molecule. If you want to look into the experimental data, you will get from this ID, this one, 13307 8956. So it will give, we got 4 negative. So measured call is from negative group, and environment of this major group is similar to our query molecule, right? So we can say that yeah, on basis of the measure call from the negative analogs, it is negative. Finally, it is negative. Then it will go for another one, alert number 51, second alert, same thing. Again, look on the analogs. Majority analogs are negative. Environment is again. Then your third alert, alert number 114. You are getting the answer also, and with justification. This alert is dismissed, shared with API. But when you share the report, you should highlight all this relevant analog also, right? Okay. So, and what you need to observe, you need to observe the environment of this analog in comparison to this analog, right? So here actually your chemistry vision will play a key role. As a chemist, you will see the group type where this alert is there,
the location of this alert, and the attaching group here, the environment of that group, if it is electron withdrawing or electron donating group, you have to, if the same group is present in your analog also, it means they have sharing same kind of nature. So on the basis of that, we can say that these molecules are negative. For this, Correct. I have something, some helping element for you. I believe my colleague Sidhuji also told you about one software called Spartan, right? So after this meeting, I will just give you the idea about that. So then it will take this fourth alert. This alert is dismissed. It is shared with API. Why it is dismissed? This is the alert, and this are the analogs, right? All these four analogs, they are found to be a negative. Finally, you must be looking for the experimental data, and here is the experimental data. These are the ID which I told you, and these are the details of the experimental condition in which the experiment is set up. For each, सुनिए जितेंद्र जी, ये लिटरेचर मुझे कहाँ से मिलेगा? सॉफ्टवेयर ऊपर से। करिए थोड़ा सा, ये आप ऊपर करिए, ये नीचे 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 नीचे, मुझे वहां पर आइए जहाँ पर वो इनके आईडीज और डिटेल है, नीचे आइए थोड़ा आगे सा, आगे आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखना 8956। हाँ हाँ, अब 8956 को ये बोलता है नेगेटिव। अगर नेगेटिव बोलता है तो इसका जस्टिफिकेशन चाहिए, वेटलैब डेटा चाहिए हमको। अब 8956 का वेटलैब डेटा देते हैं हम। ये रहा 8956, हाँ, इसका डेटा यहाँ है। और भी डेटा मिलेगा, ये कुछ डेटा है। डाउन साइड जाएंगे डिटेल में, स्ट्रेन्स एंड ऑल, वन मोर, स्ट्रेन्स एंड ऑल, ठीक है। ठीक है। ये सारी डिटेल्स आपको सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाएंगी, सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट विच आर रिक्वायर्ड टू ड्राफ्ट योर रिपोर्ट। देन इसके बाद ये कहाँ से मिलेगा? ये जो लिटरेचर है, एफडीए लिटरेचर रेफरेंस, ये भी आपको सॉफ्टवेयर ही देगा। अभी आपको देखिए, जैसे कि ये 8956 का जो इंफॉर्मेशन है, इसके लिए हमारे पास में बोल रहा है रेफरेंस नंबर 1, राइट। और ये रेफरेंस कहाँ पे है? डाउन साइड आप जाएंगे, ये रही आपकी रेफरेंस नंबर 1। हाँ हाँ, आप ये मेंशन कर देंगे FDA सीडर आर्चिव्स 2017, ये रहा आपका रेफरेंस, राइट। इस रेफरेंस की डिटेल मिलेगी कहीं से? आई बिलीव वो भी मिल जाएगी। लेट मी एक्सप्लोर मोर। ये मांगना पड़ेगा टीम से अगर इसकी डिटेल चाहिए, बिकॉज इसकी डिटेल अगर आप रेफरेंस दे देंगे ना, तो जो एजेंसीज है वो एक्सप्लोर कर लेंगे यहाँ से। एफडी के पास में जा रही है तो उनके पास मालूम ही है डेटा उन्हीं का, उनका खुद का डेटा है, राइट। ओके। बाकी जो डिटेल्स हैं जो कि डीपर चाहिए, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में लिंक के साथ में आ रहा है। तो ये जैसे कि सब लिटरेचर है, इसका एक्सेस जो है ये पब्लिक डोमेन पे फ्रीली अवेलेबल नहीं होता है। तो हाँ, वो वहाँ से आपको करना पड़ेगा। अगर इसमें केस अल्ट्रा कुछ हेल्प कर सकता है, अगर किसी पर्टिकुलर रिपोर्ट को लेके आपको लगेगा तो आप बताइएगा, मैं क्रॉस चेक कर लूँगा। लेकिन लिंक्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे, राइट। देन इस कंसोलिडेटर में ये रिपोर्ट के बाद में अगेन ये क्या करेगा, लास्ट में आपको अपेंडिक्स मिल जाएगा, और यहाँ पे दोनों सॉफ्टवेयर का आउटपुट रखा हुआ है। ये आपका स्टैटिस्टिकल है, एंड डाउन साइड आप जाएंगे, ये आपका रूल बेस्ड है, ठीक है। और ये मैकेनिज्म, ये सारी आपको डिटेल्स यहाँ मिलेंगी। अभी आपको क्या करना है, ये सारी डिटेल्स से आपके पास में एक रिपोर्ट आ गई। अब आपको रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी। वो कैसे लिखते हैं? सैंपल रिपोर्ट। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये है मेन पार्ट जो हमने करना है। ये सॉफ्टवेयर नहीं करेगा, ये ह्यूमन बींग को करना है सर, मैन्युअली करना पड़ता है ये। अब ये सैंपल रिपोर्ट जो है ये आईसीसीएम से इम्प्योरिटी पे प्रोड्यूस की गई है, एंड दिस इज डन बाय आवर डोमेन एक्सपर्ट डॉक्टर सुमन चक्रवर्ती। तो ऐसे ही करके आप अपना नाम लिख देंगे, आपने रिपोर्ट प्रिपेयर की है, किस डेट को की है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करके किया है, नाम लिख दिया आपने। सॉफ्टवेयर की डिटेल में कौन सा सॉफ्टवेयर है, क्यूएसआर सॉफ्टवेयर है, और ये वर्जन कौन सा था इसका, डिटेल्स ये इतनी काफ़ी हैं। इसके बाद में क्या क्या मेथड आपने यूज़ किए, ये आपने यूज़ किया। अगर आप थर्ड मेथड को यूज़ कर रहे हैं, उसको भी आप यहाँ पे थर्ड नंबर डाल के मेंशन कर सकते हैं, राइट। देन आपने क्या किया, ये डिटेल्स यहाँ पे। असेसमेंट इंक्लूडिंग द पैरेंट ड्रग एसिटोजिलामाइड, ये आपका पैरेंट ड्रग था, एंड टू पोटेंशियल ऑफ इट्स इम्प्योरिटीज नेमली इम्प्योरिटी डी एंड ई। इस पर हमने क्यूएसआर प्रेडिक्शन किया। देन वी हैव इम्प्योरिटी टू बी नॉन रिएक्टिव टू द डीएनए, नॉन म्यूटाजेनिक, एंड स्पेसिफाइड टू बी क्लास 5 क्लास 4 रेस्पेक्टिवली। ये आपका एक आपने समरी दे दिया अपने असेसमेंट का, राइट।
देन आपने क्या करना है, जस्टिफाई क्या किया आपने, वन बाय वन आप अपने स्ट्रक्चर को यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। आपके जितने, ये आपका ओके। एपीआई है, ये आपकी इम्प्यूरिटी है, 2 3 4। अब आपका एपीआई है, आप बोल रहे हैं कि आपका एपीआई जो है एम्स नेगेटिव है, लेकिन उसको भी जस्टिफाई करना पड़ेगा। आप किस लिटरेचर बैकग्राउंड पे कह रहे हैं कि वो नेगेटिव है। पेरेंट ड्रग एम्स नेगेटिव, उसका अपेंडिक्स डेटा आपके पास में है तो उसको आप लगा देंगे साथ में, राइट। और कभी भी एपीआई का क्लासिफिकेशन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे क्लास जो है वो नल है। देन ओके। देन आप जाएंगे इम्प्यूरिटीज में, तो इसने इम्प्यूरिटी उठाई, इसका फाइनल प्रेडिक्शन जो आया आपको बता दिया इसमें कि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव है। और फाइनल कंक्लूजन इसमें क्या है, नेगेटिव प्रेडिक्शन फॉर बोथ द मेथड, ठीक है। देन ये डिटेल्स भी, ये सारी सी डिटेल्स आपको सॉफ्टवेयर से मिलेंगी। कुछ डिटेल्स जो हैं जो आपको अपने मतलब साइंटिफिक असेसमेंट से भी लिख सकते हैं, लाइक यहाँ पे लिखते हैं ये लोग, also aromatic amines on 134 are usually non-mutagenic, are supported by expert rule and all। ये भी सॉफ्टवेयर से मिल गया। इसमें कुछ डिटेल्स होती हैं जो सॉफ्टवेयर में नहीं मिलती हैं, वो आप, हाँ ये इलेक्ट्रॉन, हाँ ये देखिए, ये जो डिटेल्स है ये केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आई है, that this particular group has been shown to be deactivate aromatic amines by electron withdrawing feature, right। तो ये थोड़ा सा नॉलेज है। अगर आपके पास में क्वेरी स्ट्रक्चर और एनालॉग्स है, दोनों में आप कंपेयर करना चाहते हैं, उसी के लिए मैं बता रहा था। ये एक सॉफ्टवेयर हमारे पास में है, ये एक अलग से सॉफ्टवेयर है केमिस्ट्री का, जिसमें ओके। आप मॉलिक्यूल के मतलब इन्वायरमेंट को अगर आप देखना चाहते हैं, वो आप रीड कर सकते हैं। उसका इन्वायरमेंट मतलब अगर उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक देखना चाहते हैं, अभी मैं इसमें रन नहीं किया, मैं ऑलरेडी लोडेड मॉलिक्यूल आपको दिखा दूँ। ये सॉफ्टवेयर से हट के बात कर रहा हूँ सर मैं। प्रोग्राम फाइल, एक वेक फंक्शन करके हमारे पास सॉफ्टवेयर है, जो अगर आप एक्सपर्ट रिव्यू लिख रहे हैं वहाँ पे शायद आपको कुछ हेल्प करेगा ये एक्स्ट्रा। यस, ये इसका क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्यूटेशन कर रहा है, इस पे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो टाइम ले रहा है। ये आपका डेमो पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया सर, जो इसमें करना था, राइट। जो आपको एक्सपर्ट रिव्यू लिखना है वैसे लिखना है। ये थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा हूँ, अगर आप अपने मॉलिक्यूल को और एनालॉग को कंपेयर करना चाहते हैं और उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, तो ये अच्छा टूल है। ये देखिए, इस पर मैं चेक करूँगा, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक मैप आ गया। थोड़ा सा सिस्टम मेरा हैंग हो गया है। इसमें ये जो ग्रीन कलर है ये हाईली नेगेटिव है। ये थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो रहा है सर। इसमें ये जो कलर डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको देख करके आप जान जाएंगे कहाँ पे नेगेटिव ग्रुप है, कहाँ पे न्यूट्रल है। ग्रीन वाला न्यूट्रल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा इस पर मतलब अट्रैक्ट करेंगे। इसका थोड़ा सा डिफरेंट व्यू भी हम देख सकते हैं। इसको केस अल्ट्रा सॉफ्टवेयर से कोरिलेट नहीं करेगा। एक एडिशनल चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा सिस्टम मेरा हैंग कर रहा है आज। ये तो आपको लगेगा तो इसका 30 डेज का फ्री ट्रायल लाइसेंस हमारे पास में है, ये मैं आपको दे सकता हूँ। इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स के लिए। इसमें एनएमआर भी जनरेट होता है। ओके सर। हाँ, ये सॉफ्टवेयर में हम एनएमआर का कैलकुलेट करना चाहें उसका अलग फीचर है। ये मल्टीपल चीज़ खुली थी इसलिए सिस्टम हैंग हो गया। मेरा सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है सर। कुछ दिक्कत है सर, सॉफ्टवेयर हैंग हो गया है मेरा इसमें। कुछ और नहीं होता सर, आप सिर्फ यही बात करते हैं तो भी ये बाद में देखते हैं सर, ये बाद में दूसरी देखते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं सर। वहीं पर आते हाँ, तो ये आपका एक्सपर्ट रिव्यू आपको प्रिपेयर कर लेना है ऐसे, ठीक है।
फाइनली ये आपने अपने एक एक मॉलिक्यूल को उठाया, उसका डिटेल यहाँ दिया, उसके ऊपर कमेंट, ये कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको ये कमेंट बहुत ध्यान से देना है। काफ़ी सारे एविडेंस आपको सॉफ्टवेयर से मिल जाएंगे, बट अगर आपके पास में अपने इन हाउस लिटरेचर से कोई फाइंडिंग है जिसके बेस पे आप बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये नेगेटिव रिपोर्ट को सपोर्ट करता है, उसको भी आप एक और ऑप्शन देके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। या जितने आपको ठीक है। फाइंडिंग मिले, जितना आपके पास बेस्ट हो, मतलब कुल मिलाकर के जब भी हम कोई रिपोर्ट किसी एजेंसी को भेजते हैं तो ऑब्जेक्टिव ये होता है उनको हम जितना ज़्यादा सेटिस्फाइड कर सकते हैं करें, ताकि वहाँ से क्वेरी कम से कम आए। हम गारंटी नहीं दे सकते कि क्वेरी नहीं आएंगी, तो उसकी आने की चांसेस कम हो जाएगी, राइट, अगर वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे हमारे फाइंडिंग से। करेक्ट। ये करने के बाद में आपको ये एनालॉग्स इसमें लगा देने हैं, अपनी फाइल सारी, सारे जितने भी आपको एनालॉग्स मिले थे हर एक चारों अलर्ट्स के लिए, और वो लगाने के बाद आपको इस टाइप का एक वो एक्सपेरिमेंटल डेटा भी दे देना है कि आपके ये एपीआई है, ये उसके केमिकल्स हैं, ये आपके बैक्टीरियल स्ट्रेन्स हैं, किस स्ट्रेन में नेगेटिव है क्या है, सारी डिटेल्स आप यहाँ पे कॉलम बना के दे देंगे। और ये रेफरेंसेस हैं, सारी रेफरेंस की डिटेल यहाँ दे देंगे, और रेफरेंस को नीचे मेंशन भी कर सकते हैं। ये बस ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। और बाद में कंसोलिडेटर का जो रिपोर्ट है उसको आप अटैच कर देंगे कि एमआरएफ डॉक्यूमेंट आपको गया होगा, नहीं गया हो तो आपको हम मेल कर देंगे। दोनों मॉडल्स के लिए आपके एमआरएफ डॉक्यूमेंट उसमें अटैच कर देंगे, एंड दिस इज द फाइनल थिंग यू हैव टू डू। ओके सर। ये रिपोर्ट मैं आपसे शेयर कर दूंगा, टू जस्ट गिव यू द रेफरेंस। ठीक है सर, आप मुझे शेयर कर दीजिए रिपोर्ट। जी। बाकी फिर मैं एक बार यूज करके देखता हूँ इसको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये टोटल में मतलब इस वे में, वैसे तो मैं यूज कर चुका हूँ, बट इस वे में एक बार देखता हूँ मैं यूज करके इसको ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ठीक है सर, ये फिर मैं आपसे कुछ रहेगा इंटायर तो बात इंटायर करता सेशन हूँ मैंने आपसे। रिकॉर्ड कर लिया, अगर आपको लगे तो मैं ये रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको। हाँ सर, भेज दीजिए मुझे रिकॉर्डिंग भी। ठीक है सर।